ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ನಾವೆಲ್ ಕೋವಿಡ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಮಹಾಮಾರಿ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 83, ಯಾದಗಿರಿ 139, ಕಲಬುರಗಿ 165, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 2824, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು 9319. ಸನ್ಪುರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕ ಅನಿಲ್ ಗುಂಡಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ್ ಅವರ ಸಾವು ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಬಲಿ. ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಂದು ವಗ್ದಾಳೆ ಸಾವು, ಗಣ್ಯರ ಶೋಕ, ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಸಾವು. ಉಕ್ರೇನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ವೈದ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಮರ್ ಶಾಲಿವಾನ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಕಾದ್ಲಾಬಾದ್ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಶಾಸಕ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಭೇಟಿ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8ರಂದು ಮೃತದೇಹ ತವರಿಗೆ ಅಂದು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಿಗದಿ 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ದಿಂದ 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ವರೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಕುಲಸಚಿವರ ಪ್ರಕಟಣೆ. ಓಕೆ ಲೈಫ್ ಕೇರ್ ಗಂಧರ್ವ ಸೇನಾ ಅವರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಇದೀಗ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರಣೆ. ನಾವೆಲ್ ಕೋವಿಡ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಮಹಾಮಾರಿ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸನ್ಪುರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮುಖಂಡ ಅನಿಲ್ ಗುಂಡಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ್ ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಕೋವಿಡ್-19 ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅವರು ಗುಣಮುಖರಾಗದೆ ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿ ಪಿಕೆಪಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಯುವ ಮುಖಂಡ ಚಂದು ವಗ್ದಾಳೆ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು ಕೊರೋನಾದಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಅಟ್ಟಹಾಸ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ ಇದೀಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸದೆ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬಳಸದೆ, 6 ಅಡಿ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರುವುದು, ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಷಾದಕರ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಣೆಗಾರ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಿ, ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಜನತೆ 3 ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಣ ಮಾಡದೆ, ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸದೆ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬಳಸದೆ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರುವುದು ದುಃಖಕರ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಜನತೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ ತಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಆತ್ಮಬಲಿ ನೀಡುತ್ತಕ್ಕಂತಹ ದುಸ್ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬಾಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿರೋದು, ಎಲ್ಲಿದೆ ಕೊರೋನಾ? ಕೊರೋನಾ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೇಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲೆದಾಡಬಾರದು, ನಾನೇಕೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೇ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತಾಗಿ ಕೊರೋನಾ ದಿನ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸದೇ ಇರುವುದು ದುಃಖಕರ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾಲ ಮಿಂಚಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಏನೇ ಅನ್ನಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ಬಿಡಿ ಅವರಿಗೆ. ಆದರೆ ತಾವುಗಳು ಈ ಸುದ್ದಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಯುವಕರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವಾಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕರಾರು ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಾವು ಬೀಳತಕ್ಕದಲ್ಲ, ಸಾವು ಸಮೀಪ ಇದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡೋಣ. 83, ಇದುವರೆಗೆ 4959. ಸಾವು ಇಂದು 1, ಇದುವರೆಗೆ 140, ಇತರೆ ಸಾವು 4. ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 139, ಇದುವರೆಗೆ 6125. ಸಾವು ಇಂದು 2, ಇತರೆ ಸಾವು 43. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 165, ಇದುವರೆಗೆ 12910. ಸಾವು ಇಂದು 2, ಇದುವರೆಗೆ 225. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಂದು 2824, ಇದುವರೆಗೆ 1,47,581. ಇದುವರೆಗೆ
ಇಂದು 1038, ಇದುವರೆಗೆ 2163, ಇತರ 1001. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಂದು 9319, ಇದುವರೆಗೆ 3,98,551. ಸಾವು ಇಂದು 95, ಇದುವರೆಗೆ 6,393, ಇತರ 19. ಅನ್ಲಾಕ್ ಆದರೆ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಮಾಸ್ಕ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಧರಿಸಲೇಬೇಕು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲೇಬೇಕು. ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬಳಸಲೇಬೇಕು. ಅನ್ಲಾಕ್ದತ್ತ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅಪಾಯಕರವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿ. ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಂದು ವಗ್ದಾಳೆ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು, ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಉಮಾಕಾಂತ ನಾಗಮಪಳ್ಳಿ ಅವರು, ಇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು, ಯಾಕತ್ಪುರ್ನ ಭೀಮಣ್ಣ ಬೀದರ್ಕರ್ ಯಾಕತ್ಪುರ್ ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಶೋಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಅನಿಲ್ ಗುಂಡಪ್ಪ ಬಿರಾದರ್ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ, ಯಾದಗಿರಿ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ವಕ್ಫ್ ಹಜ್ ಸಚಿವರಾದ ಪ್ರಭು ಚವ್ಹಾಣ್, ಬಿಜೆಪಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಾನಂದ ಮಂಠಾಳ್ಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಅನೇಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗಣ್ಯರು ತೀವ್ರ ಶೋಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಅವರ ಸಾವಿನಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶೋಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ವೈದ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಮರ್ ಶಾಲಿವಾನ್ ಬಿರಾದರ್ರ ನಿವಾಸ ಕಾದ್ಲಾಬಾದ್ಗೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈಶ್ವರ್ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8ರಂದು ಮೃತದೇಹ ತವರು ಕಾದ್ಲಾಬಾದ್ಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಅಂದು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ 6ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕುಲಸಚಿವರು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಲೈಫ್ ಕೇರ್ ಗಂಧರ್ವ ಸೇನಾ ಅವರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ. ಓಕೆ ಲೈಫ್ ಕೇರ್ದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರು, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಾವು ದುಃಖ ಪಡದೇನೆ ಓಕೆ ಲೈಫ್ ಕೇರ್ ಬನ್ನಿ, ತಾವು ಕೂಡ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಸರಳವಾಗಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ, ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ದುಡಿಯಿರಿ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವೆಯಿಂದ, ಕಾಯಕದಿಂದ ದುಡಿದು, ಸತ್ಯ ಕಾಯಕದಿಂದ ದುಡಿದು ಹಣ ಗಳಿಸುವ ದಾರಿ ಓಕೆ ಲೈಫ್ ಕೇರ್. ಗಂಧರ್ವ ಸೇನವರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ 9341111499 9341111499 ಗಂಧರ್ವ ಸೇನಾ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬಹುದು. हरियाणा रोहतक इस प्लेस से लगभग 3.5 साल पहले ये कंपनी स्टार्ट हुई. ये डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है. डायरेक्ट सेलिंग का मतलब जब कंप्लीट टू डायरेक्ट कस्टमर कंपनी ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯಿಂದ आप एज ए कस्टमर एनी प्रोडक्ट का अगर हम 10 रुपये में लेते हैं तो ये 3 से 4 रुपया हर डे कास्ट का प्रोडक्शन होता है. ये बीच में CFF, कोई बड़ा एजेंट, कोई होलसेलर, कोई रिटेलर, ऐसा होते होते हमारे हाथ बीच में एडवर्टाइजमेंट रहता है चालू करा बचत वगैरह उनके ऊपर लगभग 30 से 40% जाता है. उसके बाद हमको प्रोडक्ट ये बीच के लोगों से प्रोडक्ट का कुछ तो क्वांटिटी क्वालिटी चेंज होता है क्या? सिर्फ उसको हमारे तक पहुँचाने के लिए इसका इस्तेमाल है. और क्वालिटी तो चेंज बेसिकली नहीं होती मगर बाजार में होती है. डुप्लीकेट प्रोडक्ट बहुत सारे हमारे हाथ को आते हैं और ओरिजिनल कंपनी के नाम पर डुप्लीकेट कंपनियाँ रिटेलर की दुकान पर डब करके जाते हैं. तो उसके पैसा फूल देने के बावजूद भी कई बार ग्राहकों को धोखा होता है. तो ये सारी चीज़ों के नज़र को रखते हुए ये पूरे बीच के लोगों को हटाकर डायरेक्ट कंपनी के कस्टमर प्रोडक्ट पहुँचाए तो कैसा रहेगा. इस बात के ऊपर लगभग 70-80 साल पहले सोचा गया अमेरिका में. उसके बाद में डायरेक्ट सेलिंग की सिस्टम
ये जाता है। यहाँ पर मेन एडवर्टाइजमेंट का पैसा, अगर ये कस्टमर, इसको तो खाद नहीं पड़ता ना प्रोडक्ट कौन सा है, अच्छा है बुरा है, रोज अगर चाहिए तो वो बाजार को जाके दुकान तो जा नहीं सकता, कंपनी जा नहीं सकता, और कंपनी वाला घर जाके दे नहीं सकता। और ये सिस्टम नहीं है, कोई दूसरा सिस्टम जरूरी है। तो दूसरा सिस्टम में क्या होता है, एक बार कंपनी का प्रोडक्ट ये आदमी इस्तेमाल करता है, और वो आदमी अगर एडवर्टाइजमेंट करने वाला शाहरुख खान बनता है, अमिताभ बच्चन बनता है, तो उसको जाने का पैसा ये आदमी बनता है। लगभग 60% जो यहाँ पर नेटवर्क पे जा रहा है, उसमें का रिजल्ट पैसा इनको जा रहा है, यही पैसा कस्टमर को मिलने का सिस्टम है, डायरेक्ट सिस्टम है। इंजीनियर नेटवर्क बिल उसका नाम, मर गया, मर के 25 साल हो रहा है, तो उसके बेटे की रुको वारंटी है। तो बर्गर बना सकता हूँ, क्यों ना बर्गर की दुकान खोलूँ। एक तो पहला उसका वो कारोबार होगा, घर का दुकान। दूसरा होगा बर्गर डेली लोगों को होना, रोज 4 डबल रोटी 5 डबल रोटी हमें घर को लाते हैं, अमेरिका में बर्गर लाते हैं। तो 2 पॉइंट काम के हो गए। तीसरे के बारे में सोचेंगे, मतलब वो आदमी एक छोटा सा दुकान खोलता है, होटल, उसका नाम रखता हूँ मैकडॉनल्ड्स। चलता है 5-6 महीने साल भर में, उसका बहुत पॉपुलर हो जाता है, अच्छा ब्रांड बन जाता है। उसके बाद में अपने 4 दोस्तों को बुलाता है, उनसे बोलता है मेरा नाम बन गया बाजार में, ब्रांड हो गया, मैं तुम्हारे को मेरा नाम देता हूँ और काम करने का सीक्रेट सिखाता हूँ। उसके बदले में पैसा आपके डालना है, इन्वेस्टमेंट आपके करना है, मैं बोले जैसा आप उसको निभाना है। तो नॉलेज देने के लिए मुझे सिर्फ आप 5% देते जाओ, 95% आपके रख लो, मेरी फ्रेंचाइजी लो। तो दोस्तों बोलते पागल हो गया, पार्टनरशिप 50-50 का होता है, 95-5 क्या है। सब सुने मगर चले गए, कोई का साथ नहीं दिया। फिर कुछ दिनों के बाद वो अपने बहन के पास जाता है, इस दूसरे एरिया में रहती है, नैन्सी बोलकर, उसको स्टोरी समझाता है। वो बोलते यस, भाई बोल रहा था, सही बोल रहा हूँ, मान लीजिए अपने एरिया में होगा, तो देखते देखते वो फेमस हो जाता है। जब एक से 2 प्रयोग हो गए तो कुछ पुराने दोस्तों के कान खड़े हो गए, अरे कुछ तो है इसमें। तो एक दूसरा दोस्त आता, मुझे भी होना मेरे एरिया में, तीसरा आता, मुझे भी होना मेरे एरिया में, चौथा आता, मेरे एरिया में, मेरे एरिया में, मेरे एरिया में। ऐसा होते होते आज लगभग 50 साल के बाद पूरी दुनिया में मैकडॉनल्ड के 40 लाख ब्रांचेस, इंक्लूडिंग गुलबर्गा, इंक्लूडिंग धारवाड़, इंक्लूडिंग हुबली, इंक्लूडिंग सिकंदराबाद, इंक्लूडिंग हैदराबाद, होटल मैकडॉनल्ड्स ब्रांड ऐसा आता ना ब्रांड। इसमें क्या होगा, इन्होंने 5%, इन्होंने 5%, जैसे 40 लाख 5% उसके घर को क्या था। 40 लाख की छोड़ा, 1000 की बात करेंगे। अगर आज ऐसा ही काम आप कर रहे हैं, आपके 1000 ब्रांचेस हैं, आपको यहाँ पर दुकान में बंद करे समझे, ये 1000 ब्रांच बंद होते क्या। यहाँ पर बैठने वाला भी आदमी 8 घंटा काम कर रहा है, यहाँ भी 8 घंटा काम कर रहा है, यहाँ 8 घंटा, यहाँ 8 घंटा, हर जगह 8 घंटे, 2 सुबह शाम तक बैठे, तो उसके अकाउंट में भी 1000 नहीं 8000 घंटे काम हो रहा है डेली। 8000 घंटे के हिसाब से उसे एक पैसा के हिसाब से नहीं आता, लाखों रुपया है। दैट इज द पावर ऑफ फ्रेंचाइजी। तो ये जो सीक्रेट है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मैन पावर कंपाउंडिंग हो रहा है तो मनी कंपाउंडिंग हो रहा है। तो इसी थ्योरी को ध्यान में रखते हुए ये मल्टी लेवल मार्केटिंग अस्तित्व में है, डायरेक्ट सेल। यहाँ पर हम जो भी कंपनी का मेंबर होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, तो वहाँ पर हम एक छोटा सा फ्रेंचाइजी लेते हैं उसका, और ये फ्रेंचाइजी को हम अपने चाहने वालों को, दोस्तों को, अहबाब को समझाकर उसमें जोड़ते हैं। जितने लोगों को हम जोड़ते हैं उतने हमारे ब्रांचेस होते हैं। जिन्होंने आगे जोड़ा ये भी ब्रांचेस होते हैं।
पुराने मैकडॉनल्ड के मॉडल में और हमारे मॉडल में फ़र्क है, एक छोटा सा फ़र्क है। पुराना मॉडल जो है वो सिंगल लेवल फ्रेंचाइजी। हीरो होंडा का अगर फ्रेंचाइजी लेना है तो अब मेन ऑफिस को जाके लेना, इधर पे लिया तो इधर वाला हल्की वाले को दे नहीं सकता, हल्की वाला भी फिर दिल्ली को जाना हल्की के लिए लेना, हुमनाबाद वाला लेना है तो फिर दिल्ली को जाना हुमनाबाद को लेना। ये सिंगल लेवल फ्रेंचाइजी है मैकडॉनल्ड मॉडल। अब इसमें क्या करें, मल्टी लेवल कर दें। यहाँ पर लेवल आदमी भी दूसरे को फ्रेंचाइजी दे सकता है, यहाँ वाला भी दूसरे को दे सकता है, यहाँ वाला भी दूसरे को दे सकता है। ये मॉडल के ऊपर ये आदमी जो भी कमाएगा हमारे मोटर लाइफ में, आज सिर्फ 2,500 रुपये पे करके 2,500 का पूरा यूजेबल प्रोडक्ट लेना है जो हर रोज घर की इस्तेमाल होता है। आप साबुन ले सकते हैं, वॉशिंग पाउडर ले सकते हैं, पेस्ट ले सकते हैं, पेस्ट है 2 नंबर के, फेस क्रीम है, ये शैम्पू है, हेयर ऑयल है, ऐसे बहुत सी चीज़ें जो रोज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी दुकान से ला रहे हैं। हर महीना गरीब घर वाला जो भी 200, 400, 500, 1000, 2000 का खर्चा 100% है। मगर वहाँ पर क्या है, नो लायबिलिटी, वहाँ से लाए हम उधर हम इधर, प्रोडक्ट मिल गया और कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, जैसे आप इस दुकान से सामान लेते हैं आपका एक आईडी क्रिएट होगा, आप इसके डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं और आपको डिस्काउंट में मिलता है, होलसेल रेट में मिलता है। होलसेल रेट में मिलने का मतलब वहाँ पर बाजार में 1 रुपया कम नहीं करता है। हमारे पास 20 से लेकर 40% डिस्काउंट मिलता है। अभी 99 रुपीज़ का हेयर ऑयल है, इसका डिपी रेट है 60 रुपीज़, आपको 60 में मिलता है 39 रुपीज़ रिटेल बेनिफिट। ये दुकान वाले को जाता है, मेडिकल वाले जहाँ भी बिकता है ये वहाँ वो कमाते हैं, तो ये कमाई आपको पहले से मिलने वाला है। दूसरा, ये आदमी आप अगर 10 लोगों को ऐसा करें या 100 लोगों को करें तो डायरेक्ट इतने लेग नहीं होते। और दूसरा समझाता हूँ, यहाँ पर हमारा वो ही लेग में जनरेशन प्लान होता है। तुम तीसरा आदमी को ज्वाइन करें तो वो ऑटोमेटिकली स्पिल होगी इसके नीचे आता है, स्पिल होकर इधर आता है, लास्ट लाइन का कहीं भी है स्पेस वहाँ गिरता है, तो वही लाइन में ग्रो होने आता है। मगर जो डायरेक्ट आप स्पॉन्सर करते हैं आवाज में गिरती, डायरेक्ट स्किल करने के बाद आपके डायरेक्ट ही होते हैं। ये डायरेक्ट कैंडिडेट अच्छा काम कर रहे समय महीने को 1 लाख कमा रहा है, 1 लाख पर मंथ कमा रहा आने वाले दिनों में 6 महीने आप जाए छोड़ के अपना काम कर रहे हैं। इसके 1 लाख की 10% आपको मिल रहा है। जिन्हों अगर 50,000 कर रहा तो इसका 5-10%, जिन्हों 2,000 कर रहा तो इसका 200, जिन्हों 1,000 कर रहा तो इसका 100, जिन्हों 2 लाख कर रहा तो इसका 20,000, जिन्हों 5 लाख कर रहा तो इसका 10%। ये आगे की कहानी है, टाइम लगता है, धीरे धीरे काम नहीं करे तो सिर्फ 1,000 का सामान लेना है, वो भी यूजेबल। अभी बहुत सारे चीज़ें हैं जो हेल्थ के रिलेटेड है, तो समझ में आए तो लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। और डेली यूज़ का जो है वो तो होना ही है, कहीं ना कहीं। तो 2,500 का प्रोडक्ट लेना है, अपना आइडिया एक्टिवेट करना है, रजिस्ट्रेशन फ्री है, सिम कार्ड फ्री रहेगा सर, उसका एक्टिवेशन कर लेना 599 देगा, तो ऐसा 2,500 देकर इसका प्रोडक्ट लेकर एक्टिवेट करना एक बार लाइफ। दूसरी बार महीने को एक फिर से खरीदी करना मुझे कंडीशन नहीं है। कई कंपनी में हर महीना खरीदी करना मुझे होता है, इतना तो लेना है, इतना तो लेना है। अगर मुझे 10,000 का चेक आ रहा है दवाई से, तो तुम कम से कम 1,000 का प्रोडक्ट लेना, 2,000 का लेना, मुझे कंडीशन डालती कंपनी। तो हमारी कंपनी बोलती है कंडीशन वो कंपनियां डालते हैं जिनका प्रोडक्ट बिकता नहीं। हमारा प्रोडक्ट सिर्फ शो करो बिकता। अगर हर महीना पानी नहाने की आदत है तो साबुन पहने के ला रहे तो लेना ही पड़ेगा, वहाँ लेने के बिना 4 साबुन यहाँ से लो, शैम्पू होना वहाँ लेने का यहाँ नहीं, सिर्फ शॉप चेंज करो और इसमें पार्टनर हो, इनकम लेनी। और इतने फ्रेंचाइजी इंडिया भर में नहीं, दुनिया भर में, अभी नेपाल गया है, इंग्लैंड गया हमारा बिजनेस और दुनिया की कई कंट्री में जा रहा है। तो वहाँ भी अगर आपके कोई कॉन्टैक्ट है तो वहाँ का बिजनेस भी आपको आता है। तो इतना लिमिट नहीं है एरिया का,
तो इस तरह का ये सुंदर कॉन्सेप्ट है, आपको मार्जिन मिलता है फर्स्ट पेमेंट। सेकेंड है एक्टिव बोनस पॉइंट। एक्टिव बोनस पॉइंट क्या होता है? अभी मान लीजिए आप इधर बिल कर लीजिए, आप 2,000 पे करके अपना प्रोडक्ट लिए घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दो लोगों को जोड़ दिए, सो गए, या अपने धंधे में लग गए। अगर ये दो लोग भी एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, समझिए वही भी कर रहा है, फिर इनको भी जोड़ दिया छोड़ दिया, ये भी जोड़ दिया छोड़ दिया, 10 के बाद तो कोई सचिन तेंदुलकर आने वाला है, कोई ना कोई अच्छा मार्केटिंग करने वाला आने वाला है, सब कुछ जरूरत है। आज वो सब छोड़ देना है, इतना क्वालिफाइड हो, इतना लिखा पढ़ा हो, इतना डॉक्टर हो, इतना इंजीनियर हो, वो सब काम तो नहीं आ रहा। नो डिग्री नीडेड, ओनली स्किल। आप कैसे बात करते हैं, कितना प्रेजेंट करते हैं, अपने प्रोडक्ट को कैसा अच्छा बेहतर तरह से समझा सकते हैं, कैसा बेच सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पर कोई भी आएगा अच्छा काम कर रहा तो आपको बिजनेस में होगा क्या होगा? मान लीजिए इधर है 2,500 बिजनेस वैल्यू, इधर है 2,500 बिजनेस वैल्यू। यहाँ पर बिजनेस वैल्यू बोलकर और एक चीज़ है, क्या है? एक होता है प्रोडक्ट का एमआरपी। अब ये देखिए, ये हेयर ऑयल है डिफरेंटली आंवला बोलकर, इसका एमआरपी है 99 रुपीज़। इसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 60 रुपीज़। इसका बिजनेस वैल्यू है 15 रुपीज़। बिजनेस वैल्यू है, इसको भी पैकिंग करना पड़ा, इसको भी फॉरवर्डिंग करना पड़ा, इसको भी टैक्स देना पड़ा। ये सारी चीज़ें जाने के बाद प्योरली कास्ट ऑफ प्रोडक्ट का जो वैल्यू आता है कंपनी को, उसका एक वैल्यू पॉइंट वैल्यू क्या है? ये पॉइंट वैल्यू के ऊपर फिर हमको कंपनी से इनकम आता है। तो ऐसे पॉइंट वैल्यू 2,500 बना एक तरफ और एक तरफ 2,500। सिंपल बोले तो 2,000 रुपये देकर आप 500 बीबी का बिजनेस करते हैं, इसमें कम से कम 500 बिजनेस वैल्यू बना एक्टिवेशन के लिए। तो ऐसे 500 बिजनेस वैल्यू के 5 गुना है, लगभग 5 लोग भी आए या कोई दुकान लगाने वाला है तो 10,000 का प्रोडक्ट नहीं चलेगा, तो ठीक है, उसका एक लेने से 2,000 बीबी बनता है। तो इस तरह अगर हो गया तो आपको एक एक्टिव बोनस पॉइंट मिलता है। एक पॉइंट की वैल्यू है यहाँ पर एक्टिव बोनस पॉइंट की 250 से 300 रुपये, 250 रुपये मिनिमम। कितना हो गया? तो इधर 2,500 इधर 2,000 बीबी होने के बाद अपने को एक एक्टिव बोनस पॉइंट मिलता है जिसका कीमत 250 रुपये है, 300 रुपये के बीच में। ये कंपनी के टर्नओवर कम ज़्यादा होता है एवरी मंथ। और ये बिजनेस 1, 2, 3 महीने कंटिन्यू मेंटेन होता है। 2,000 होता है, 5,000 होता है, 5,000 और 2 पॉइंट होते हैं, 10,000 होते, 4 पॉइंट होते। तो इस तरह 3 महीने भी कंटिन्यू रहा तो आपको कंसिस्टेंसी बोनस पर एक पॉइंट मिलता है, उसकी वैल्यू है एक पॉइंट की 140 रुपये। बोलने का मतलब अगर 3 महीने के बाद मान लीजिए आपने इधर एक 50,000 बीबी, इधर एक 50,000 बीबी का बिजनेस हो रहा है, ये फुल एंड फाइनल टारगेट है कंपनी का, इससे ज़्यादा नहीं है। कई कंपनी में 7 लाख 10 लाख 2 लाख के ऊपर क्या ये देते गारंटी होगा। यहाँ पर सिर्फ 50,000 बिजनेस वैल्यू, 50,000 बिजनेस वैल्यू के मैक्सिमम पर आपको कंपनी के पूरे बेनिफिट मिलते हैं। अब 50,000 बिजनेस वैल्यू पर ये सील अगर आता है 3 महीने के बाद, तो यहाँ पर एक्टिव बोनस पॉइंट कितने बनते हैं? 50,000 में 2,500 के 20 पॉइंट बनते हैं। 2,500 10 25,000 के 10 25,000 के 10 2,500 1 पॉइंट है। 2,500 का 1 पॉइंट 50,000 10 पर 20 पॉइंट 20 into 250 5,000 5,000 रुपीज़ ये सीन आने पर अपने को आ सकता है। उसी टाइप पर कंसिस्टेंसी बोनस मिलता है 140, ये भी 2,800 और एक बार जिस महीने में भी 50,000 मैच होता है उस टाइम पे आपको एक सुपर एक्टिव बोनस बनकर और एक इनकम ऐड होता है।
ये बोनस पॉइंट का वैल्यू है, ये पॉइंट का 5,000 रुपये। तो यहाँ पर फिर इसमें 5,000 ऐड होगा। तो ये 50,000 बिजनेस वैल्यू मेंटेन करने पर फर्स्ट टाइम आपको 5,000, 5,000, 10,000, 12,800। ये बिजनेस सिर्फ 3 महीने मेंटेन होता है। तो यहाँ पर आपको 5वां इनकम मिलता है कार फंड। ये पॉइंट का वैल्यू है 3,500 रुपये। तो यहाँ पर 3,500 और एक क्या, यही बिजनेस और 3 महीने कार फंड का भी मैच होता है कंटिन्यू। तो आपको यहाँ पर एक हाउस फंड बोलते हैं। हाउस फंड का एक पॉइंट का वैल्यू होता है 3,000 रुपये। तो लगभग 50,000 बिजनेस वैल्यू का बिजनेस इन 6 महीने हम मेंटेन करते हैं अपने ग्रुप से। हम क्या करें, पर्सनल यूज के लिए कभी 200 का लगा, कभी 500 का लगा, कभी 1,000 का लगा, कभी कुछ भी नहीं लगा, नो प्रॉब्लम। अगर लेना है तो लेना, नहीं तो नहीं लेना। एक बार 2,000 का लेकर इसमें एंट्री लेना, लाइफ टाइम इनकम लेकर है। तो यहाँ पर कितना हो रहा है 90,300 शेयर 20,000 रफली। ये बिजनेस जंगल के आगे की तरफ बढ़ रहा है। आज जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, समझ में इसके आ रहा, सर हमारे एरिया में प्रोडक्ट नहीं है, कैसा करना है? प्रोडक्ट नहीं है तो यहाँ पर ज्वाइन होने के 3 सिस्टम है। एक सिस्टम है जस्ट कस्टमर आईडी, 2,000 देखिए सामान का कस्टमर बनो, पहले से कस्ट करते आए थे, अभी भी कस्ट करो, कस्ट करके मरना कस्टमर कहला। तो कस्टमर आईडी है 2,500। उसके बाद में जो भी ये नया जितना भी प्लान के हिसाब से आए तो आता है। सेकेंड आईडी है, एक है कस्टमर आईडी, उसमें आपको 2,500 रुपया 500 भी होगा, 2,500 रुपये का। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है। डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में 10-12 हज़ार का प्रोडक्ट लेके ज्वाइन हो। उसमें क्या होता है, ऐसा इतना घर में तो किसी एक शोकेस के पास, टीवी के पास, किसी एक इसके पास जमा के रखे, घर को आएगा पूछता रहोगे, अपने को होना बोले जो भी एक साबुन वही उठाए, कि 10 साबुन, 10 चाकू, 10 ये रखे, घर को आएगा पूछता व्हाट इज दिस, ये क्या है, क्या है तो पूछे तो बस है हमारा काम हो गया प्रवचन करने का चालू। जब इसके बारे में नॉलेज देते हैं तो मुख्ಯಾಂಶಗಳು ನಾವೆಲ್ ಕೋವಿಡ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಮಹಾಮಾರಿಗೆ ಸಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಅನಿಲ್ ಗುಂಡಪ್ಪ ಬಿರಾದರ್, ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿ ಪಿಕೆಪಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದು ವಗ್ದಾಳೆ ಅವರ ಸಾವು, ಗಣ್ಯರ ಶೋಕ, ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ವೈದ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಮರ್ ಶಾಲಿವಾನ್ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಸಕ ಈಶ್ವರ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11ರವರೆಗೆ. ಓಕೆ ಲೈಫ್ ಕೇರ್ ಗಂಧರ್ವ ಸೇನರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ. ತಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕಾಯಕದಿಂದ ದುಡಿದು ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಸರಳ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ ಓಕೆ ಲೈಫ್ ಕೇರ್ ಗಂಧರ್ವ ಸೇನ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆ ಮುಕ್ತವಾಯಿತು. ನಾಳೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಾಕ್ಷಟಿ ಧರ್ಮಪ್ಪ ಬೀದರ್. ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ತಾವು ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಆ ಸುದ್ದಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಡಿ,